हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इससे पहले के दो पार्ट्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। 2018 एंड 2019 के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। Question number 1. Write one word for the following expression. That means one word substitution. Someone who pursues a study or a sport as a pastime. कोई इंसान जो कि कोई चीज़ या फिर कोई स्पोर्ट या फिर कोई स्टडी जो कि पास टाइम के लिए करी जाती है, ना कि प्रोफेशनल तौर पे। सो उस इंसान को हम क्या बोलते हैं? एमेचर। A gathering of spectators or listeners at the performance. एक परफॉर्मेंस की गैदरिंग जो देखने आई है, सुनने आई है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑडियंस। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। ये ब्रैकेट में हमें इसलिए मेंशन किया गया है कि हमें अपना नाम और एड्रेस नहीं मेंशन करना, तो हम ABC करके या फिर XYZ करके एप्लीकेशन लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, आगरा। सर, most respectfully, I beg to say that I come from a very poor family. My father is a peon in a private firm. He gets only 6,000 per month. He has a big family to support. He cannot pay my fees. Kindly grant me full fee free ship so that I may continue my study. Thank you. Yours obediently, XYZ, class 9C and date over here. Date आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं as you are writing. To the principal, government inter college, date and then place. Salutation, matter, your name and address. Fill in the blanks with suitable words given in the bracket. First, he cannot dash my offer. Accept, accept. दोनों ही words का pronunciation काफी same है. He cannot accept my offer. He cannot accept my offer. इस वाले accept का मतलब क्या हो जाएगा? इसके अलावा, और एक्सेप्ट करना का मतलब अपना लेने का हो जाएगा ACCEPT, एक्सेप्ट। सो हेयर फर्स्ट वन इज करेक्ट। ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड, BARE बेयर, BEAR बेयर। इट विल बी, यहाँ पे सेकेंड वर्ड ठीक होगा, बेयर, नंगे पांव। इस वाले बेयर का मीन्स हो गया एनिमल बेयर। तो ये होमोफोन्स है जिनका साउंड सेम होता है, स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मतलब डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द जनरल एम ऑफ पोएट्री टीचिंग। जनरल एम्स ऑफ पोएट्री टीचिंग आर द foremost purpose of teaching poetry is to enable the students to praise beauty, rhythm and style so that they may know the things they can praise the beauty, rhythm and style. They should know all such kind of things. वो इन सब चीज़ों को जाने और appreciate कर सकें। To teach students to recite poetry with proper pronunciation, stress, intonation and style, both personally and collectively. What are they saying? At least students को क्या आना चाहिए? पोएम को बोलना आना चाहिए। How the pronunciation will be, कि pronunciation क्या रहेगी, stress क्या रहेगा पोएम में, क्या पोएम की intonation है, and all such type of things. चाहे तो single reading या फिर collectively reading. To enable students to enjoy poetry and create a taste for it. They simply want to say कि पोइट्री हम इसलिए पढ़ाते हैं so that they may have a taste of it. Just कि they should know कि पोइट्री होती क्या है, कैसे लिखी जाती है, क्या स्टाइल होता है, and all basic parts of poetry. To create aesthetic sense in student, which means so that they may believe in the things. To create imaginative power in students. Imaginative poetry क्या करती है? Imaginative power develop करती है। तो different type of poetries different चीज़ें arouse करती हैं students में। तो poetry का basis क्या होता है कि वो imagination, aesthetic, enjoyment, ये सब चीज़ें बच्चों में develop कर सकें। Write one word for the following expression. The science of vegetable life. Botany. Botany, zoology होता है ना एक part. The study of life. The science of life, biology. The science of vegetable life, botany. The science of animal life, zoology. Work without the name of author. कुछ
ऐसे वर्क्स होते हैं, ऐसी पोइट्रीज, ऐसे राइटअप्स होते हैं जिनमें हमें ऑथर का नहीं पता होता है। तो जब हमें नहीं पता होता है कि किसने लिखा है तो वो हो जाता है एनोनिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग्स। फर्स्ट स्पेलिंग इज आर्ग्यूमेंट एंड सेकेंड स्पेलिंग इज अनमाउंटेबल। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। He will never forget my kindness. Will he ever forget my kindness? वो मेरी kindness कभी नहीं भूलेगा। क्या वो कभी मेरी kindness भूलेगा? Correct the following sentences. We discussed about the matter yesterday. तो ये क्या हो जाएगा, हमें इसको करेक्ट तरीके से लिखना है। So it would be like we discussed the matter yesterday. We discussed about the matter, matter के बारे में या फिर matter को। तो करेक्ट लैंग्वेज क्या हुई, वी डिस्कस द मैटर यस्टरडे, नॉट वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। सेकेंड इज जॉन इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। ट्रांसफॉर्मेशन है जॉन इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। इन डूइंग दिस वर्क काम करने में, काम करने से। टायर्ड इन डूइंग नहीं होता, टायर्ड ऑफ डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल। An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, समझा चुकी हूँ मैं इस बारे में कि एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्या होता है, क्वालिफायर होता है नाउन या फिर प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ स्वीट मैंगो। तो मैंगो कैसा है भाई, स्वीट है। ही इज अ ब्रेव मैन। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। In these sentences, sweet, brave, honest and beautiful are adjectives. ये जितने भी वर्ड्स इटैलिक्स में लिखे हैं हमारे इन सेंटेंसेस में, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट वन इज बिलीव एंड अनदर वन इज स्ट्राइक। स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कैसे होगी स्टूडेंट्स? स्पेलिंग की प्रैक्टिस स्पेलिंग्स करने से ही होगी। Write a letter to your friend inviting him to attend your sister's marriage. Another letter is here. Let us practice this one. ये last year आया हुआ क्वेश्चन है। Dear Rahul, here you have given your address. हम यहाँ पे अपना सिर्फ नाम मेंशन करेंगे just because ये हमारा informal letter है। Dear Rahul, I am glad to inform you that my sister's marriage is going to be held on 8th February 2020. I request you to attend the wedding ceremony. It will be really a great fun. The function will be held at Hotel Doubletree. Please come a day or two before the function. I hope you will attend the function. Yours XYZ. Here you can write yours lovingly, your friend, and date is mentioned here. You can write this date here also. Change the following into indirect speech. He said I am hungry. Comma, inverted commas हटेंगे, क्या हो जाएगा? That he was hungry. He said I am hungry हो जाएगा he said that he was hungry. Raju said Ramesh has been eating food. Comma, inverted commas replaced by said that. तो हो जाएगा Raju said that Ramesh had been eating food. Next question. Write 4 sentences on any of the following topics. Pollution, the value of health. This is what? This is a kind of composition writing. आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे बोले हैं लिखने के लिए। आपको पैराग्राफ भी बोल सकते हैं लिखने के लिए, किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। लास्ट ईयर इन्होंने 4 स्टेटमेंट पूछे थे, हो सकता है इस बार पूछ लें कि आप पैराग्राफ लिख के दिखाइए। Here they have written on pollution. Pollution is one of the greatest problems of modern time. Second, it is of various kinds such as air pollution, water pollution, sound pollution, soil pollution, noise pollution and many more. This comprehension writing और 4 sentence writing, इस तरीके के क्वेश्चन में आपकी बेसिक नॉलेज काम में आती है कि उस टॉपिक के बारे में what you know. And personally I would advise choose that topic जिसके साथ आप familiar हों, जिसके बारे में आप कुछ जानते हो, कुछ लिख सकते हो, अच्छा कंटेंट। एंड अगर आप किसी चीज़ के बारे में बेसिक फैक्ट्स जानते हैं तो वो बहुत हेल्पफुल है। फैक्टफुल चीज़ें लिखेंगे वो पूरे 100% मार्क्स स्कोर करने के चांसेस रहते हैं। फिर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, थर्ड इज द वर्स्ट ऑफ ऑल द पोल्यूशन इज द एयर पोल्यूशन. फोर्थ, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. आई रेस्ट माई वीडियो हेयर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा.
वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड लक।